So here we are with the class about the topic of design, digital design. ठीक, डिजिटल डिज़ाइन में हमने अब लेवल चेंज की है. वी वर प्रीवियसली डिज़ाइनिंग जस्ट बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट. लेकिन अब हम एक लेवल अप आ गए. हमने क्या देखा? हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड बाइट वन and decoder. We realize that the function of encoder is to encode. You getting my point? You one answer na aap take it khada khadi zidre mark se exam. So but when you understand, so the job of the encoder is to encode, while as the job of decoder will be to decode that coded information. But having said that, we will not end here. We need to go further. Kahe ke message further, Papa? I think we have to go to sequential design is what we have to do. पढ़ गए यार. Next heading is sequential design. Next heading आप लिखिए introduction to sequential design. Introduction to sequential design. Yes, please come in. So and last class assignment was, I just want to check that out straight away. So I think we got an idea कि combination और sequential circuits में क्या difference है. लेकिन फिर भी मैं आपको एक broad idea दे दूँ. I was more pleased. You don't travel side, still you are there. I don't know why. अभी तक short में, अभी तक जो भी circuit हमने पढ़े वो सारे combinational circuits. What do we mean by a combinational circuit? It means that the output depends only and only on the combination of the input. For example, if it's an AND gate, तो जब दो इनपुट 0 0 थे, आउटपुट मेरा 0 था. 1 दोनों थे, आउटपुट मेरा 1 हो गया. So I don't have any other factor, time, memory, something to check before deciding the output. Is that okay? Because मैं बस combination of inputs देख रहा हूँ. But now when I move to a sequential circuit, what I have to worry about is, rather this is not a sequential circuit. I have my inputs. Yeah, okay, I'll go. I have my inputs over here. Okay. I have my outputs. This stays to be a combo circuit still because nothing has changed. But now, when I take this, say, previous inputs to the memory and I store them, okay, and then I give them to this input section. Okay. So what I can say, this was the input, this is output, therefore I will have to relate the factor of time also. Say if it is I of n, this is O of n, then the outputs which will come from here, let's say this gives a delay of +1 seconds. ये आप लिखिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए. मतलब मैंने इनपुट दिया था सुबह 10 बजे और 10 बजे मेरा आउटपुट आता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट की प्रॉपर्टी यही है, जो हमने इनपुट दिया जो के तो आउटपुट आ जाता है. अब मैंने उसको मेमोरी में स्टोर किया 11 बजे, ठीक. तो कह रहे नेम दिस एज O of n plus 1. ये 10 बजे था, 10 बजे के बाद 1 घंटा ऐड हो गया तो n plus 1 बन गया. So this is called as previous output or previous states. ये टर्म याद रखना, previous states. जो previous outputs आए थे उनको हम कहते हैं previous states. तो वो यहाँ पे आ जाते हैं in a delayed form. Now I at time, now n plus 1, I have to give the next inputs and also the previous states to this. बोलने का मतलब है, अब आप लिखिए for a sequential circuit, just one line. I expect पहले आप वहाँ पे assignment लिखेंगे. सब लोग assignment लिखेंगे जिनने अब तक किया है नहीं किया है. Assignment है differentiate between sequential and combinational circuits. Very important question. You will do it on your own. तो नहीं आता पिछली क्लास में?
ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें आप बाज़ाब्ता डायग्राम्स बनाएंगे इस तरह से आप, लेकिन नेट से देखेंगे प्रॉपर्ली, जो एक या किसी बुक से रादर। हाँ जी, फिर से नहीं करना है बच्चे जिसने नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ पहला जो है हेडिंग ना, इसमें पहला नोट यही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉम्बिनेशनल सीक्वेंस। उसके लास्ट में आप ये लाइन लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, दैट, अब मुझे वो लाइन ही भूल गई। For a sequential circuit, the output is a function of present inputs and previous outputs. For a sequential circuit, the output is a function of present input and previous output. ये समझो क्या इसमें प्रीवियस आउटपुट। देखिए मैंने सुबह 10 बजे इनपुट दिए थे, 10 बजे आउटपुट्स आ गए 2 मिनट के लिए, एंड प्रीवियस आउटपुट्स। अब मैं जब इन इनपुट्स को मेमोरी में स्टोर करता हूँ कुछ टाइम के लिए, अब 11 बजे फिर से इनपुट्स आ गए, लेकिन अब जो 11 बजे इनपुट्स आएंगे मुझे एक तो वो देने हैं और साथ में प्रीवियस आउटपुट्स जो 10 बजे के आउटपुट्स थे, वो यही है ना, 10 बजे के आउटपुट्स मैंने यहाँ स्टोर किए थे ना, so that's why previous outputs and present input, that's the whole logic. So sequential circuit का इसका मतलब next time लिखिए, therefore the heart of a sequential circuit is the memory element. बात क्या है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, पानी खाओ। So the heart of everyone please, the heart of a sequential circuit is the memory element, सुना क्या इसकी? This stays to be the combinational circuit, इसकी कोई combinational circuit ही, लेकिन इसको मिलता है memory element के थ्रू। memory element या circuit जो भी, तो इसका मतलब अगर हमें सीक्वेंशियल सर्किट के ऑपरेशन को समझना है, हमें पहले ये समझना है कि हम मेमोरी कैसे बनाएंगे, कि हम मेमोरी कैसे बनाएंगे। एक डिजिटल सर्किट में मेमोरी लानी है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक डिजिटल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, बट नहीं। आप लिखिए फ्लिप फ्लॉप को बोल्ड करके लिखिए, अंडरलाइन करके लिखिए, डिफरेंट पेन से लिखिए, ये आपको नाम याद रखना है। फ्लिप फ्लॉप, FLIP, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट। A flip-flop is the basic memory element. You know, a teacher-student relation is very important. When I teach you, I don't know why I become a different person, because students have a lot of impact on the teacher as well. How receptive you are, how aware you are. I see most of the eyes open, so it actually maybe opens my heart as well. So many words which I don't have in my mind, but they come up. So body language of students matters. Just to tell you that if you want to get best out from your teachers, give them wide open eyes, so that the teacher feels that they are watching my every movement. So I need to be very cautious while explaining. Anyways, a flip-flop can store 1 bit of data. A flip-flop can store 1 bit of data, या एक फ्लिप फ्लॉप खाली 1 बिट स्टोर कर सकता है। मतलब अगर हमने इनपुट पे 1 दिया, ये आउट 1 ही स्टोर करेगा। अगर हमने इनपुट पे 0 दिया, ये 0 ही स्टोर। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ मेमोरी, राइट? ओके, it is also known as bistable multivibrator. It is also known as bistable multivibrator. It is also known as bistable multivibrator. Vibrator. मुझसे जाना, आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे एक फ्लिप फ्लॉप की।
अब जो सीक्वेंशियल बाइस्टेबल क्यों बोलते हैं बच्चे इसको? वी कैन गिव इनपुट 1 and it will store 1, or we can give input 0 and it will store 0. Since it has two stable states, either it will be stable at state 1 or it will be stable at state 0. मतलब इसका आउटपुट अगर मैं एनालाइज करूं, या तो वो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है. Therefore, bistable multivibrator. Since it can change between 1 and 0 anytime, so that's why vibrator, multivibrator. Bistable means two stable states. That's why the name bistable mind. समझ आ रहा है ना? Is this clear? Any problem? ठीक है? Clear सुना? A flip-flop has two outputs. Eyes on board, please. If I name this as output Q, this will be Q bar. मतलब a flip-flop has two outputs which are complementary to each other. एक flip-flop के दो outputs होंगे और दोनों क्या होंगे? Complementary to each other. ये इसका डिजाइन है. A flip-flop, इसकी एप्लीकेशन, a flip-flop can be used as a frequency divider. अगर आपको कहीं पे किसी सिस्टम की कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उस पे आप कोई सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है. A flip-flop can be used as a frequency divider. मेरी बात सुनो, इसकी एप्लीकेशन अपने मैकेनिकल डिजाइन पे सुनो. अगर आपको कोई सर्किट चलाना है, 2 मिनट के लिए आप अपना मोटर चला रहे हैं, ठीक, जो कि रोटेट कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मोटर थोड़ा तेज रोटेट कर रहा है. ये रोटेट किससे करेगा? किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से अगर रोटेट कर रहा है. सुनो मेरी बात. सपोज ये सिग्नल जा रहा है किसी मोटर को, ठीक, एंड ये इसको राइट लेफ्ट चला रहा है. उस मोटर का काम सिर्फ होगा जो एक इनपुट वहां से आया इसको, मतलब सपोज ये पार्सल डिवाइडर, हर एक पार्सल, एक इंडिया के लिए है, एक पाकिस्तान के लिए, एक वाला इंडिया, एक पाकिस्तान, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, ठीक है. So I am giving the signal 1 0 1 0, ठीक, एंड इसका साइज था सपोज ये, ठीक, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आ गई, इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया. अब मुझे ये काम फिर से करना है, राइट लेफ्ट, बट आई नीड टू डू इट ऑन अ स्लाइटली लेसर फ्रीक्वेंसी. मतलब राइट स्टे लाइक दैट, लेफ्ट. समझ आ रही मेरी बात? So I need to decrease the frequency of this signal. क्या है? हाँ, करो ट्राई कर डिक्रीज. क्या हो? वापस आ. कम बैक. He was saying, सर जैसे एग्जाम्पल है फैन की, बट मुझे समझे बोला फैन. So if you want to decrease the frequency of a signal or a waveform, you can use a flip-flop, but obviously it has to be a digital waveform. तो इसकी frequency decrease करने का मतलब क्या होगा? Since ये suppose 1 सेकंड में 1 था, दूसरे सेकंड में 0 था, दूसरे सेकंड में 0 है. But now when I say decreasing the frequency, so I will keep the 1 for 2 seconds and 0 for 2 seconds. इसकी frequency half हो गई है ना, frequency हो गया, cycles कम हो गई है ना. So therefore, if you want to decrease the frequency, you can use a flip-flop. अब divide by 2 करना है, divide by 4 करना है, that is a different subject. How we do that is again a different topic. But ये समझ आ गया ना, frequency divider क्या हो गया? Frequency divider हो गया, frequency कम करना, divide करना, ठीक है? ये एक flip-flop property. इस हैकर MCG करें, कैसे? We'll see that later on. We have the control signal. लेकिन आप लिखिए कि क्या करें हम इसमें? Can we jump?
Okay. So the first flip flop that we will go and study is SR flip flops. मैंने एक मिनट. One second. Before we go to the flip flops, one heading before that is important. इसमें लिखिए types of triggering. Again an important heading. I will note please. Types of triggering. यहाँ पे आप एक सिग्नल देख रहे हैं, इसके बारे में आपने अभी तक पूछा नहीं सर ये है क्या? इसका नाम है क्लॉक. क्या है? क्लॉक सिग्नल. अब फ्लिप फ्लॉप अपना ऑपरेशन जो हम है, फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन हम ट्रिगर कब करें ये डिसाइड होता है क्लॉक. मतलब अगर हमारा क्लॉक 0 है फॉर ए लेवल ट्रिगर्ड सर्किट, अगर हमारा क्लॉक 0 हमारा सर्किट काम ही नहीं करेगा, और जो ही क्लॉक 1 हो गया हमारा सर्किट ट्रिगर हो जाएगा और ये अपना काम करने लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? सो दिस क्लॉक इज बेसिकली द ट्रिगरिंग. हमारा क्लॉक क्या है, लिख लो जरा इसको. आवर क्लॉक इज द ट्रिगर इनपुट. Our clock input is the trigger input for clock input is the trigger input for a sequential circuit. ठीक? Now based upon the nature of triggering based upon the nature triggering the type I just missed one line. Based upon heading actually है types of triggering. इसको आप इस पे आप फोकस कीजिए. I missed one line in between. उससे आप कंफ्यूज नहीं होना प्लीज. What I missed is that types of triggering are first one. आप ऐसे लिखिए. एयरपोर्ट हो रहा है हमारे. यस, इस इन द फ्रेम. आप इसमें से ग्राफ बनाइए. लेवल ट्रिगरिंग, and edge triggering. अभी क्या है वो based upon the nature of triggering card दीजिए. Based upon the nature of triggering card दीजिए. Based upon the nature how a clock signal, based upon the nature how a clock signal triggers the circuit, triggers the operation. How a clock signal triggers the operation. Types of triggering are given as. Types of triggering are given as. Types of triggering are given as. आप फिर ये ग्राफ बनाइए. Triggering plus type. जी है. 11
लेकिन इसकी भी सब टाइप्स हैं। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। अब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग ये जरा बेटा समझने में पड़ेगा। आई को कोड लिख लो जल्दी से, ये लिख लो जल्दी से। अब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होता क्या है? इट मींस जब मेरा क्लॉक सिग्नल एक पॉजिटिव लेवल पे होगा इस रेंज में, खाली उसी टाइम आउटपुट हमारा चेंज हो सकता है। जब मेरे क्लॉक जो सिग्नल मेरा जब क्लॉक मेरा पॉजिटिव लेवल या लॉजिक 1 लेवल पे है, तब मेरा सर्किट ऑपरेट करेगा। जो ही मेरा क्लॉक लॉजिक 0 पे चला गया, सर्किट ऑफ या समझो ऑपरेट नहीं करेगा। या मैं कहूँ उसके आउटपुट उस टाइम क्या होंगे? डोंट केयर कंडीशन में। समझ रहे मेरी बात? When clock is high or logic 1 or at a high level, that's why the positive level triggering, my circuit will be triggered and outputs can change. Now I think you understand the logic. For a negative logic circuit, or sorry, for a negatively level triggered circuit, the output will change in this range when your clock is at a negative level or logic 0. समझते ना? Complex समझ के समझते ना? अटेंशन इसके नीचे बेटा मैंने कहा क्लॉक क्या है हमारा? ट्रिगरिंग। हाँ, क्लॉक ना इस ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मतलब क्या होगी? इधर इनिशिएट्स नो ऑपरेशन। जब आपका क्लॉक होगा, नहीं, जब आपने सर्किट का मैकेनिज्म बनाया पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, ये हम बनाते हैं, मतलब सर्किट कब ऑपरेट करे ये हम डिसाइड करते हैं। हम अपने सर्किट को बनाएंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड सर्किट। उसका मतलब ये होता है जब क्लॉक 1 आएगा 1, तब सर्किट ऑपरेट करेगा या तब हमारे आउटपुट चेंज होंगे। और जो ही क्लॉक 0 होगा, सर्किट के आउटपुट चेंज नहीं होंगे। So this that's why it is called as positive. Positive. This is suppose logic 1 या 1 लो. This is voltage 0. अब नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या है? हम इसको उल्टा बना देते हैं। समझो हम एक नॉट गेट लगा देते हैं कहीं पे। उससे क्या होगा? जब आपका क्लॉक 0 होगा, तब आपके आउटपुट चेंज होंगे, या हम कहेंगे तब मेरा सर्किट ऑपरेट करेगा। मन तो थी मुझे इसी का था स्टडी एंड स्पोर्ट्स, वी आर हियर टू स्टडी, ठीक है? And if I tell someone, come on, let's study, he should be excited. So he is a positive level triggered student. Now, sports is another activity, but that is not what we are here for. If I tell someone, okay, now let's come for sports, maybe 3 students will come. So maybe they are negative level triggered students. There are some just example. Although I prefer sports, but it was one other, just to make you understand. So both things work, but it is up to me what I decide. Okay? If a person edge triggered, ये तो लेवल मतलब ये एक सर्टेन लेवल मेंटेन रह रही है फॉर अ टाइम। एज ट्रिगर्ड क्या है? एज ट्रिगर्ड के भी 2 टाइप्स है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये क्या चीज है? सपोज दिस इज योर सिग्नल, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये अब लेवल पे फोकस नहीं कर, आइजन कोड प्लीज। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ये लेवल पे फोकस नहीं करेगा, ये एज पे फोकस करेगा। और कौन सी वाली? पॉजिटिव। इसका मतलब व्हेन देयर इज 0 to 1 transition and the circuit is triggered by this transition of 0 to 1, आइडियली तो ऐसे है स्टीप, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसे होगा। When there is a 0 to 1 transition, there will be a positive edge, and this positive edge will trigger the operation. This is called as positive edge triggered circuit.
किम्स किम्स लोग समझ, रेज योर हैंड प्लीज। किस किसको समझ आया, किस किसको नहीं आया, नाउ रेज योर हैंड। लेवल ट्रिगर किस किसको नहीं समझ आया, रेज योर हैंड। सुबह क्या खाया था तुमने? कुछ नहीं खाया इसलिए। लेवल ट्रिगर्ड इज व्हेन वी मेंटेन अ लेवल 1 तब होगा। नाउ ये वाले केस में ये आप इससे एफिशिएंट सर्किट है समझो। जब एक पॉजिटिव एज खाली आएगी 0 to 1 तब जाके आपका सर्किट ऑपरेट करना शुरू करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में हमारा रिवर्स है। When you have exactly right, those who are understanding are getting it clear. Now negative edge triggered circuit में क्या होगा? Suppose this is, ये क्या है? ये हमारा clock signal है ना? This is again your clock signal. आपका clock signal जा रहा है from 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Negative edge triggered would mean जब आपका इनपुट जा रहा है from 1 to 0, खाली तभी आपका जो है आउटपुट चेंज होगा। जब 1 to 0 एक नेगेटिव वो एक सिग्नल होगा ऊपर से नीचे। समझ आ रहा है? नहीं? Take it easy. It's not that difficult. It's just okay. Just ignore the difficulty. It's just simple. Don't worry. ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा इसके बाद वाला। अब ये इसलिए समझ नहीं आ रहा है बिकॉज मैं इसके साथ सर्किट नहीं बना रहा। ठीक है? अभी एज ए टेक द सर्किट आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? बस इतना समझो। आई विल गो प्लीज। यहाँ पे एक लेवल मेंटेन करनी पड़ती थी तब जाके मेरा आउटपुट चेंज होता था। यहाँ पे खाली एक एज में दूंगा 0 to 1 ट्रांजिशन दूंगा, मतलब कर्स्ट पे ऑल ऑफ करंट। दिस इज अ लेवल ट्रिगर्ड। कर्स्ट कर भैया एज ट्रिगर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पाइक द पर्सन गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट लिख लो जरा। द सिंबल्स आर वी दिस इज हाउ वी डिनोट अ positive level triggered circuit. Now this circuit can be any block. This is how we denote that the triggering is negative level triggered, मतलब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड के सीधा सीधा मैंने इनपुट दे दिया। नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड मैंने कहा ना आपको हम नॉट गेट यूज करेंगे, एंड दिस बबल इज अ सिंबल ऑफ अ नॉट गेट, राइट? सो क्लॉक हमने दिया इस तरह से, दिस विल बी दिस ब्लॉक कैन बी एनी ब्लॉक x. दिस इज जस्ट टू शो दैट दिस ब्लॉक x इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड। अब समझ आना चाहिए। देखो बेटा ये समझो, मैंने कोई ब्लॉक लिया x, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, ये भी सीक्वेंशियल सर्किट है। अगर मैं क्लॉक सिग्नल को सीधा सीधा दे रहा हूँ, मैंने कहीं से सपोज क्लॉक सिग्नल लाया, ये क्लॉक सिग्नल CLOC के, इस क्लॉक को मैं सीधा दे रहा हूँ इस बॉक्स में, तो ये इसका मतलब इसके ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग ऑपरेट हो गया। ये वाला ब्लॉक x एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट होगा। Likewise, if I now generate this clock circuit and I give it to the block X with a bubble, it means that this circuit will follow negative level triggering. Okay. For this case, if a triangle will be used and a clock, it means that this is positive edge triggered circuit. अगर कोई block X है और जहाँ पे मैं अपना क्लॉक सिग्नल दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बनाऊंगा, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। एंड इफ आई ऐड अ बबल टू द सेम थिंग, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। एज के लिए ट्रायंगल बनाना है और बबल हो गया इसका नाम। इसी नीचे लिखिए, इन लेवल ट्रिगरिंग सर्किट्स, in level triggering circuits, output will change many times. In level triggering circuits, output will change many times if input is changing many times. ये एक प्रॉब्लम है इसमें। लेवल ट्रिगरिंग सर्किट के केस में बेटा, सपोज इनपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है और ये भी, इसकी वजह से आउटपुट भी चेंज होता जाएगा।
जितनी शॉर्ट में लेवल ट्रिगरिंग में इशू है इसे बेवकूफ ना फराग या इट्स सर या इट्स काना इधे बाकी हाथ से चार है बस आए बेर इसे कोशिश करना ठीक है सुना लेवल ट्रिगरिंग से कोशिश करना है जो दे है वापस पास पाना so and exactly it is right whereas edge triggering circuit is that small steep bus which opens the gate man enters and shuts the gate so even though बच्चे ने बिल्कुल क्या है दरवाजा ना चलो स्टॉप खत्म होता है ना so level triggering circuit में your outputs will change many times if the inputs is changing many times so whereas in an edge triggering circuit output will change only for that edge output will change only for that edge of the clock output will change for only the edge of the clock यहाँ पे एक बात जरा समझ लो सपोज यहाँ पे मेरा कोई इनपुट था 1 सिंस eyes on board ये समझो कोई इनपुट है और ये आउटपुट है सपोज इस एज के टाइम मेरा इनपुट था 1 एंड इफ इट इज जस्ट अ फ्लिप फ्लॉप तो आउटपुट आएगा इस एज से मेरा आउटपुट हो जाएगा 1 समझ आएगा और तब तक मान ही रहेगा जब तक दूसरी एज के टाइम दूसरा वाला इनपुट सैंपल नहीं करेगा और वहां से हो जाएगा 0 समझ नहीं आया मैं तो बात बस ये वेवफॉर्म डिटो बना दो बाद में देखिए मतलब इनपुट है 1 पहली एज के टाइम तो आउटपुट आ गया से 1 कहां तक 1 रहेगा जब तक दूसरी एज के टाइम इनपुट ये सैंपल नहीं करेगा और अगर उस टाइम इनपुट 1 है तो ये 1 कंटिन्यू रहता लेकिन उस टाइम इनपुट है 0 तो आउटपुट हो जाएगा 0 देखेंगे इसको जी ओनली फॉर द एज और बाकी फिर सेम मतलब वो फिर स्टैटिक रहेगा हाउ मेनी मिनट्स इन क्लास हाँ मैंने सुना ना एक मिनट रुको आप हेडिंग लिखिए आप SR फ्लिप फ्लॉप सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट हेडिंग नंबर 2 SR फ्लिप फ्लॉप में ऐसे लिखो बेटा F/F SR फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन अगर हमें बनाना होगा इसके 2 हिस्से होते हैं आइज ऑन बोर्ड प्लीज एक हिस्सा होता है इस तरह से दूसरा हिस्सा होता है इस तरह से ये क्या है बेटा ये क्या है नहीं ये क्या है ये NAND गेट इसको इस तरह से करें और इसको इस तरफ ले जाएं तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड कनेक्शन इसके आउटपुट को इसके इनपुट में दिया और उसके आउटपुट को इसके इनपुट में दिया दिस सर्किट दिस मच इज अ लैच इसको ऐसे एंसर्कल करके इसको नाम लिखो लैच and if this output is Q this will be Q bar now I have another part to this which will be 2 NAND gates again इन दोनों को एक कॉमन इनपुट जाएगा वो होगा क्लॉक CLK मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CLK एंड यहां पे एक इनपुट आएगा S यहां पे दूसरा आएगा R SR if this part is called as a latch eyes on board please eyes on board if this part these 2 NAND gates make a latch these 2 NAND gates along with your clock make the steering circuit STEERING steering circuit और steering का काम क्या होता है डायरेक्शन देना so this steering circuit based upon the value of SR and clock will actually decide the direction of Q and Q bar is that okay we will see the operation in next class लेकिन ये सर्किट आप बना लीजिए ठीक है with that we will stop here today